Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 17 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज स्टार्ट करने वाले हैं जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to study chapter 17 and the chapter topic name is magnetic effect of electric current. So let's start to study this chapter. In the earlier lesson, you have learned that electricity is an important part in today's world of industrialization. Our life is incomplete without it. Whether we work in an office or at home, everything depends upon the availability of electricity. Appliances like the electric bulb, fan, television, refrigerator, washing machine, motor, radio, everything works due to electricity. आप लोगों ने इसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आज का जो वर्ल्ड है पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पे। हमारा जो लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना इनकम्प्लीट है। हम लोग कोई भी काम करें ऑफिस में या घर पर, सब कुछ हमारा जो वर्क है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी पे। अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोटर, रेडियो, ये जितनी भी चीजें वो सब इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही वर्क करता है। When electric current passes through current carrying conductor or coil, then a magnetic field is produced around it. The working of appliances like electric bulb is based on the principle. As opposite to this, if a continuous change in magnetic field is produced, then electric current can be produced. This is how electricity and magnetism have become synonymous today. Transmission of electric current takes place from the distant electricity generation stations through high tension wires through transformers to homes. This chapter deals with the meaning of safe use of electricity. Along with this, the same concept related to magnetism are explained through simple activities that one can perform on their own. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जिसमें कंडक्टर जिसमें जो करंट है वो कैरिंग होते हैं, तो जो कॉइल है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। जितने भी अप्लायंसेस वर्क करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, ये सब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम लोग कंटिन्यूस चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में जिसका प्रोडक्शन हो रहा था, जो कि इलेक्ट्रिक करंट है वो भी प्रोड्यूस होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है हम लोग इसका जो मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे के सिनोनिमस बन चुके हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से प्लेस करते हैं और ये डिफरेंट जनरेशन स्टेशन पे जहाँ पे जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं वो ट्रांसफार्मर के थ्रू आपके घर तक, आपके ऑफिस तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाते हैं। ये चैप्टर मीनिंग ऑफ सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील्स करने वाला है और इसके साथ जो सेम कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म का उसे एक्सप्लेन किया गया है कुछ सिंपल एक्टिविटीज के द्वारा जिसे आप लोग खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर to study another topic, magnet and its properties. Let's see what is magnet and what are the properties of magnet. Magnet has always been a thing of use of attraction for humans. According to history, the use of magnets were discovered by the ancient Greeks during the period of Greek civilization. तो जो मैग्नेट है वो हमेशा अट्रैक्शन की एक चीज बन चुका है ह्यूमंस के लिए। और हिस्ट्री के अनुसार जो मैग्नेट्स है वो एंशिएंट ग्रीक्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था ग्रीक सिविलाइजेशन के दौरान। दे फाउंड स्टोन्स व्हिच were able to attract iron and nickel like other substances. This naturally occurring stones, see figure 17.1, which was discovered then is called as lodestone. This is an oxide of iron Fe3O4. The property of attraction of small particles of iron to both lodestone is called as magnetism. It has been often seen that the magnetic force of attraction of these natural magnets is much less than, and thus these magnets cannot be used for practical purposes. Strong magnets made of iron, nickel, and lead are made artificially and used for practical purposes. Those magnets are also called as permanent magnets. So, a magnet is a material or object that produces a magnetic field which is
responsible for a force that pulls or attracts on other materials. तो उन्होंने फाउंड किया कि स्टोन से वो आयरन निकल लाइक अदर सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में एबल है। ये नेचुरली अग्रिंग स्टोन है, जैसे कि फिगर 16.7.1 में शो किया गया है, जिसे डिस्कवर किया गया था और इसे लोडस्टोन नाम दिया गया था। ये एक ऑक्साइड है आयरन का, जिसका फॉर्मूला Fe3O4। प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन का स्टोन्स के पास, जो कि अपनी ओर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है। लोडस्टोन क्यों इसे मैग्नेटिज्म बोला जाता है। ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी देखा गया कि जो नेचुरल मैग्नेट्स जैसे जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उनके पास जो अट्रैक्शन पावर होता है वो लेस होता है, और वैसे मैग्नेट्स प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं किए जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आयरन, निकेल और लीड के मिला के एक साथ बनाया गया जाता है आर्टिफिशियली, और इसे हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। वैसे मैग्नेट को हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। अगर जो एक मैग्नेट है जिसमें जो मटेरियल या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक फोर्स के लिए, जो कि अपनी ओर दूसरे मटेरियल्स को पुल्स करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। These strong magnets can be made in various shapes and create its own persistent magnetic field. The magnetic that are commonly available in different shapes are bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical magnet, circular magnet and rectangular magnet. तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है उसे हम लोग वेरियस शेप्स और में क्रिएट कर सकते हैं, और इसका अपना एक परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैग्नेटिक जो है वो हमारे लिए डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट एंड रेक्टेंगुलर मैग्नेट। Here are the figure of magnets of different shapes. Have you ever observed magnets of any of above shapes around you? These magnets of different shapes are used in various appliances used at home like tape recorder, radio, motor, doorbell, headphones, etc. These magnets are used in various appliances to either hold or separate, control, elevate, lift substances, changing electrical energy to mechanical energy, motors, loudspeakers, or mechanical to electrical energy, generators, and microphones. तो यहाँ पे जितने भी मैग्नेट्स के शेप दिए गए, क्या आप लोगों ने उनमें से किसी भी शेप को अपनी ओर देखा है अपने चारों ओर? ये जो मैग्नेट्स है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और ये वेरियस अप्लायंसेस में घर में यूज किया जाता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर में हम लोग मैग्नेट्स को यूज करते हैं, रेडियो, मोटर, डोरबेल और हेडफोन्स में भी हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं। ये जो मैग्नेट्स है हम लोग वेरियस अप्लायंसेस में आइदर किसी चीज को होल्ड करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए या फिर किसी चीज को कंट्रोल और एलिवेट करने के लिए सब्सटेंस को यूज करते हैं। हम लोग मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोटर्स एंड लाउड स्पीकर्स, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जनरेटर्स एंड माइक्रोफोन्स। If a natural magnet is suspended freely with the help of a string, it always recedes in the north-south direction. If the magnet is slightly turned from this direction, it still returns to the same. The end that rests towards the north is named as North Pole, while the one which aims at south is named as South Pole. They are represented as and as. अगर एक नेचुरल मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करेंगे फ्रीली स्ट्रिंग की हेल्प से, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिसेक्ट होगा। अगर हम लोग मैग्नेट को स्लाइटली टर्न भी कर देंगे तो इसका डायरेक्शन फिर से वो अपने सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। जिसका एंड टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर हो रहा है तो वो नॉर्थ पोल है, और जिसका एंड साउथ की ओर हो रहा है वो साउथ पोल है, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एंड कैपिटल एस की हेल्प से। Activity 17.1. Take one magnetic needle, two bar magnets, some iron fillings and all pin and do the experimental study of properties of magnet. आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा जिसमें आपको एक मैग्नेटिक नीडल, दो बार मैग्नेट, कुछ आयरन फिलिंग्स और एक आल्पिन की जरूरत पड़ेगी, और आपको एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना होगा जिसमें आप मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सको। फॉलोइंग स्टेप में बी फॉलोड। Tie a string at the middle of a bar magnet and hang it with the help of a hook. This wire always receives at the same direction with the help of the magnetic needle. आपको क्या करना है कि एक स्ट्रिंग की हेल्प से बार मैग्नेट के मिडल में आपको उसको हैंग करना है हुक की हेल्प से। ये जो बार मैग्नेट वो ऑलवेज रिसेट होगा सेम डायरेक्शन में, जिसे आप मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से करोगे। फाइंड आउट डायरेक्शन। बाय दिस यू विल बी एबल to prove that a bar magnet always resides in the north-south direction.
तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें एबल हो जाओगे ये प्रूफ करने में कि जो बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोटेट होता है। Take iron fillings near the bar magnet, they stick to the magnet. Thus, magnet attracts iron. You would observe that the amount of iron fillings near the poles is maximum, while at the middle is negligible. तो आपको जो आयरन फिलिंग्स आपने दिया है उसे आप बार मैग्नेट के पास लेके जाओ, तो वो मैग्नेट से जाके स्टिक हो जाएंगे। ये जो मैग्नेट है वो प्योर आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स है वो पोल्स के पास ज्यादा है, जबकि मिडल में बहुत ही कम या नेग्लिजिबल है। If you bring any pole of a bar magnet near the pole of a freely suspended bar magnet, then either it will attract or repel the same. Opposite poles of magnet attract each other, while like poles north north or south south repel each other. अगर आप एक सस्पेंडेड बार मैग्नेट आपने दिया हो तो आप उसके पास दूसरी बार मैग्नेट के पास लेके जाओगे, तो आइदर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अपोजिट पोल्स मैग्नेट के एक अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो लाइक पोल्स जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ हो गया वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। Take an iron all pin near a bar magnet, leave it there for some time. You will find that the all-pin has acquired magnetic properties and iron filling starts sticking to the ends of the all-pin as well. अब आपको एक आयरन all-pin लेना है, बार मैग्नेट के पास कुछ दिन के लिए छोड़ देना है, तो आप क्या पाओगे कि जो all-pin है उसने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया है और वो आयरन फिलिंग्स को अपनी ओर स्ट्रिक कर रहा है। Break the magnet into smaller pieces. Now observe that magnetic properties are retained in the pieces as well. Thus, two poles of magnet cannot be separated. अब आपको क्या करना है कि जो बार मैग्नेट आपने दिया हो उसे ब्रेक डाउन कर देना है। तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो पीस में रिटेन्ड है। इट मीन्स जो दो पोल्स है मैग्नेट का वो एक दूसरे को हम लोग कभी भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते। सो वी हैव कंक्लूजन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। Through the activity 17.1, we can list the properties of magnetics as follows. Attracts iron towards itself. It means जो magnet है वो iron को अपनी ओर attract करता है। Freely suspended magnet always rests at the north south direction. और जो freely suspended magnet है वो हमेशा north south direction को rotate करते हैं। Like poles repel with while unlike poles attract. तो जो like poles है iron के सॉरी मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स है मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इफ आयरन पीसेस आर ब्रॉट नियर अ स्ट्रांग मैग्नेट दे आल्सो स्टार्ट बिहेविंग एज मैग्नेट्स। अगर किसी भी आयरन पीस को हम लोग स्ट्रांग मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो वो भी मैग्नेट के जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। और जो मैग्नेट्स का पोल है हम लोग उसे सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड। Keep a small magnetic needle near a bar magnet. The magnetic field rotates and stops in a particular direction only. This shows that the force acts on the magnetic needle that takes it rotate and rest in a particular direction only. This force is called torque. एक स्मॉल मैग्नेटिक नीडल को एक बार मैग्नेट के पास लेके जाना है, जो मैग्नेटिक नीडल है वो रोटेट होगा और स्टॉप हो जाएगा पार्टिकुलर डायरेक्शन में। ये दिखाएगा कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक नीडल पे एक्ट हो रहा है जो कि इसे रोटेट कर रहा है और ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेस्ट हो रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ टॉर्क बोलते हैं। द रीजन अमाउंट द मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड अकर्स एंड द नीडल स्टॉप्स एट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। The direction of magnetic field is represented by magnetic lines of forces as shown in figure 17.41. तो जो रीजन है मैग्नेट के चारों ओर में जो फोर्स है मैग्नेटिक नीडल उसका जहाँ पे अकर हुआ है और जो नीडल है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टॉप हुआ उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से, जो कि फिगर 7.41 में शो किया गया है। The direction of magnetic needle changes continuously and it takes a curved path while moving from north to south. This curved path is known as magnetic line of forces. Tangent line draw at any point on magnetic line of force represent the direction of magnetic field at that point. This magnetic line of forces have following properties. तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो चेंज होता है कंटिन्यूसली और ये इसका जो कर्व पाथ है मूविंग का वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। ये जो कर्व पाथ है उसे हम लोग मैग्नेटिक लाइन बोलते हैं उस फोर्स का। जो टेंजेंट लाइन हम लोगों ने किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट का। और ये जो मैग्नेटिक लाइन है उसके जो फोर्सेस है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। Magnetic line of forces always start from north pole and end at south pole of the magnet. जो मैग्नेटिक लाइन है फोर्स का वो हमेशा स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से और एंड होता है साउथ पोल पर।
These lines of forces never intersect each other. तो ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस वो एक दूसरे को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं. Near the poles, magnetic lines are very near to each other, by which shows that magnetic fields at the poles is stronger as compared to other parts. तो जो poles, जो मैग्नेटिक के जो पोल्स लाइंस वो बहुत ही जब नियर में होते हैं एक दूसरे के पास होते तो वो क्या शो करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है अदर पार्ट्स के मुकाबले. Our Earth itself acts as a giant magnet with south magnetic pole somewhere in the Arctic and north magnetic pole in Antarctic. The Earth also behaves like a bar magnet. Its hot liquid central core contains iron, and as it moves, it creates an electric current that causes a magnetic field around the Earth. The Earth has a north and south magnetic pole. These poles are not same with the geographic north and south poles on a map and titled at an angle of 11.3 degree with respect to it. Due to this, if a magnetic needle is suspended freely, it recesses in the north-south direction and is useful for navigation. हमारा अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. जो हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल है वो लाई डाउन है आर्कटिक में और जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो एंटार्क्टिक में है. हमारा जो अर्थ है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. इसमें जो हॉट लिक्विड सेंट्रल कोर है वो कंटेन करते हैं आयरन जैसे कि ये मूव करता है. ये क्रिएट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को जिससे मैग्नेटिक फील्ड्स का हमारे चारों ओर अर्थ के और क्रिएट होते हैं. जो अर्थ है उसका जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल है जो पोल्स है वो सेम नहीं है ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल्स में जैसे कि मैप में शो किया गया है. और जो टाइटल है ये एंगल ऑफ 11.3 डिग्री और इसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है वो सस्पेंड होता है फ्रीली और ये रिसेट्स है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ये हमारे लिए नेविगेशन के लिए हेल्पफुल है. Activity 17.2. You can also detect the presence of magnetic field. For doing this, take two bar magnets, one scale, and follow the given steps. आपको अगर डिटेक्ट करना है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इसके लिए आपको दो बार मैग्नेट चाहिए और एक स्केल चाहिए और कुछ जो स्टेप्स दिया उसको फॉलो करना है. Keep two bar magnets in such a way that they are laid on the same line and keep in a same plane at a distance of 10 centimeter. दो बार मैग्नेट को इस तरह रखना है कि जिसका सेम लाइन होगा वो सेम प्लेन पे आएगा. डिस्टेंस उसका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. Bring the light pole slowly towards each other. Could you feel something? अब जो उसका लाइट पोल है उस मैग्नेट का तो उसको आपको धीरे धीरे आपको एक साइड में लेके आना है. तो आपको क्या कुछ फील हो रहा है? You will feel two poles are repelling each other. तो आप क्या पाओगे कि जो दो पोल्स है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. Change the orientation of one of the bar magnets so that opposite poles face each other. You will observe that the two magnets quickly come close together due to force of attraction between them. तो इसमें अगर आप ओरिएंटेशन को चेंज करोगे एक बार मैग्नेट का जिससे जो अपोजिट पोल्स है वो एक दूसरे को फेस करें तो आप लोग पाओगे कि जो दो मैग्नेट्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में क्विकली आ रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसके बीच में हो रहा है. विद दिस वी कैन कंक्लूड that force act between the magnets and the region around the magnets in which this force may be experienced is called the magnetic field. इससे हमारा कंक्लूजन निकला कि जो फोर्स हमारा इस मैग्नेट्स के बीच में एक्ट हो रहा है जिसका रीजन है इस मैग्नेट्स के चारों उस फोर्स में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एंड नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन 17.1. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें. हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. सारे टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें. थैंक यू एवरीवन.